Hello all my dear students, a precious good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your science teacher, welcoming you to all once again to your official YouTube channel, that is Ajay Tiwari Science Classes, on the behalf of Subrat Singh Chitnal Academy, Jaunpur. And all dear students, as you know, in previous video we have discussed about the fertilization, types of fertilization, as well as we have also discussed about the male and female gametes along with diagrams. As you know, after fertilization there was formation of zygote. So today we will discuss about the development of zygote. It means that how zygote develop into embryos and how embryo is termed as a fetus later on, and how a complete baby develop inside the female's body. So without wasting the time, I am starting with what? Post fertilization changes, and I am requesting to you all, please watch full videos. जब कभी भी आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखने के बाद there will not be any doubt, it's guaranteed. Without wasting the time, let's start post fertilization changes. Here we will discuss about development of zygote. यहाँ से हम क्या देखेंगे बेटा? We are going to discuss about the development of zygote, because as we know in fertilization there was fusion of male gamete and female gamete. यानी female gamete यहाँ से क्या था? ओवम था. मेल गैमीट यहाँ से हमने क्या बनाया था? स्पर्म. इनके दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ था. क्या बना था बेटा? There was a formation of zygote. Now this zygote will start development. So now we will discuss development of zygote, or we can write in another words, or development of embryo. Development of embryo, or we can write here zygote. यानी zygote कैसे डिवाइड करेगा, कैसे वो डेवलप करेगा और कैसे वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा. तो यहाँ से हम लिखेंगे zygote undergo, or we can write zygote repeatedly divides and forms a ball of cells. How? ये आपका बेटा है zygote. ठीक है, zygote. Let's consider this. This one is zygote. Now it will divide and forms how many? 2 cell stages. कितनी cell stage बनेंगी? 2. Then after there will be again division. It will form 4 cells. Again it will divide and it will form 8 cells. यानी कितनी cells बनेंगी? 8 cells. Again it will divide, and after division it will forms how many? 16 cells. कितनी cells बना लेगा ये? It will forms how many? 16 cells. Again it will divide and it will form how many cells? 32. Okay, so this is what? 32 celled stage. ये बेटा आपका क्या है? 32 celled stage. This was 16 celled stage. This was 8 celled stage. This was 4 celled stage. This was 2 celled stage. It means that जायगोट में बेटा क्या होता है? डिवीजन. जायगोट में डिवीजन होगा. यहाँ पे 1 सेल थी, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32. यानी जो 32 सेल स्टेज है, ठीक है, इसी 32 सेल स्टेज में ये स्ट्रक्चर जाके कहाँ हो जाएगा? अटैच टू द इंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस. इंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ uterus, known as implantation. ठीक है बेटा, यानी जो जायगोट था, जायगोट में सक्सेसिव डिवीजन हुआ, रिपीटेड डिवीजन हुआ, एंड ड्यू टू दैट रिपीटेड और सक्सेसिव डिविजन्स, नाउ जायगोट हैव अ मास ऑफ सेल्स.
and that mass of cells are in the form of ball, and these ball of cells, here division will continue and later on this will form group of cells that will form tissues, and tissues will form organ, and organ will form organ system, and ultimately there will be formation of complete body. यानी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सेल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, सेल्स का ग्रुप लगातार बढ़ रहा है. दैट ग्रुप ऑफ सेल्स विल later on form tissues, and as you know that as the formation of tissues will continue, then group of tissues will form organ, and as the formation of organ will continue, group of organs will form organ system, and various organ system just by means of coordination, or we can say that by means of integration with each other, they will form what body of the individual. तो ये है बेटा क्या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट. इसमें हमने क्या लिखा, जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड्स एंड फॉर्म्स अ बॉल ऑफ सेल्स. ठीक है, क्या बना लेता है, बॉल ऑफ सेल्स बना लेता है, और इस बॉल ऑफ सेल्स को आप क्या कहते हो, ब्लास्टुला. ठीक है, इसको क्या कहते हो, बॉल ऑफ सेल, दैट इज व्हाट, ब्लास्टुला. सो ये एक सिंपल सा लॉजिक है जो हमने आपको बताया कहाँ, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट में. ओके बेटा, तो अभी तक हमने क्या देखा, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. यहाँ पे क्या बताया गया, जाइगोट रिपीटली डिवाइड्स एंड फॉर्म्स अ बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड ब्लास्टुला. दूसरे पॉइंट में क्या होता है, दीज सेल्स grouped together and forms different tissues, organ system, and all these events takes place in यूटेरस. यानी जो यूट्रस है फीमेल की, उसमें बेटा क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स थी, बॉल ऑफ सेल्स से जाकर यूट्रस की इंडोमेट्रियल लाइनिंग से अटैच हो गई, इम्प्लांटेशन हो गया. इम्प्लांटेशन के बाद बाकी का डेवलपमेंट कहाँ होता है, वूम के अंदर होता है या यूट्रस के अंदर होता है. ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स थी उन्होंने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने क्या बनाया, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फिर बन गई क्या, बॉडी. नेक्स्ट हम यहाँ से कह सकते हैं, later on after complete development fetus comes out from mother's womb by the process called parturition. यानी बाद में क्या होता है, जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फीटस में. फीटस का डेवलपमेंट होता है 9 मंथ्स तक. उसके बाद जब वो फुल्ली डेवलप हो जाता है बेटा, तो वो पार्चुरेशन प्रोसेस से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है. तो ये जो प्रोसेस हमने बताया, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको फिर से बताते हैं. ओके बेटा, तो एक डायग्राम के माध्यम से पूरा इवेंट्स देखते हैं. हमने आपको बताया था, दिस वॉज, यहाँ से आप देखेंगे, there was finger like projections, and here it was ovary. यहाँ पे क्या था बेटा, ओवरी था. यहाँ पे इंडोमेट्रियल लाइनिंग थी. ओके, ये क्या थी, इंडोमेट्रियल लाइनिंग. अब ये ओवरी क्या रिलीज करेगी बेटा, ओवरी विल रिलीज व्हाट, एग. नाउ इट विल रिलीज द एग, एंड बाय मीन्स ऑफ दिस फिम्बरी, इनको हम क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते थे. इसी फिम्बरी से क्या होता है, जो एग रिलीज किया जाता है ओवरी के द्वारा,
वो ले लिया जाता है, यानी एग यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पे कौन पहुँचा? एग। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए हमने क्या बताया था, देयर इज व्हाट सर्विक्स एंड वजाइना। तो अगर यहाँ पे स्पर्म का रिलीज हुआ, ये मान के चलते हैं ये क्या था? वजाइना। वजाइना में कौन रिलीज किया गया? स्पर्म। किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। तो ये स्पर्म्स आगे की तरफ आएंगे और स्पर्म कहाँ पहुँचेंगे? इस रीजन में पहुँचेंगे। यहाँ पे जब ये पहुँचेंगे बेटा, तो ये मान के चलते हैं स्पर्म, इनके बीच में क्या हो जाएगा? फ्यूजन। और फ्यूजन के बाद क्या बनेगा? यहाँ से ये क्या बन गया? जाइगोट। ये सारा काम कहाँ हो रहा है? ये फैलोपियन ट्यूब है आपकी, फैलोपियन ट्यूब। नाउ दिस जाइगोट विल डिवाइड, ये जाइगोट डिवाइड करेगा कितनी सेल स्टेज में? 2 से फिर कितनी बनेंगी? 4 से फिर कितनी बनेंगी? देयर विल बी 8। ओके, आफ्टर 8 सेल एज यू नो देयर विल बी 16। There will be how many cells? 16. So this is was 2 cell, 4 cell, 8 cell, 16 cell. उसके बाद कितनी सेल? 32 सेल स्टेज बन जाएगी, बॉल ऑफ सेल। ये आप देख रहे हैं। ठीक है, फिर यही आके कहाँ? इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग में क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? इम्प्लांटेशन। इसे क्या कहा जाता है? implantation. Now it will start the development here, and after development it will forms the fetus. और वो fetus क्या करेगा? 9 मंथ का gestation period कंप्लीट करने के बाद जब fully डेवलप हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। एक तरह से इधर हम समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था? यहाँ पे मेल गैमीट, देयर वाज मेल गैमीट, हियर देयर वाज फीमेल गैमीट। यहाँ पे क्या था? फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को आपने क्या कहा था? दिस वन इज स्पर्म, इट वाज फीमेल गैमीट, जिसे आपने क्या कहा था? ओवम। इनके बीच में फ्यूजन होगा, दैट विल बी नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन हुआ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। नाउ जाइगोट विल स्टार्ट डिवीजन। ये क्या करेगा? डिवीजन करेगा। इट विल चेंजेस इनटू एम्ब्रियो। हियर बॉडी पार्ट्स आर नॉट विजिबल, हियर बॉडी पार्ट्स आर नॉट विजिबल। यहाँ पे टिश्यूज तो हैं बेटा, ठीक है, लेकिन बॉडी के पार्ट्स यानी हाथ, पैर, हेड, आईज, ईयर, नोज, ये सब अभी डेवलप नहीं हुए हैं या दिख नहीं रहे हैं। फिर ये एम्ब्रियो किस में चेंज हो जाएगा? लास्ट में फीटस में। हियर ऑल द बॉडी पार्ट्स, ऑल बॉडी पार्ट्स आर क्लियरली विजिबल। ठीक है, यहाँ पे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, हैंड, ओके, नोज, ईयर, हेयर्स, ये सभी के सभी डेवलप हो जाएंगे। नाउ दिस फीटस विल कम्स आउट बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, जिसे आप क्या कहते हो? डिलीवरी और पार्चुरेशन। डिलीवरी और इसको क्या कहा जाता है? पार्चुरेशन। टोटल फर्टिलाइजेशन से लेके डिलीवरी तक बेटा कितना टाइम लगता है? 9 मंथ्स। और इन 9 मंथ्स को हम क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड। इसको क्या कहा जाता है? जेस्टेशन पीरियड, और वी कैन राइट इट एज ए डेवलपमेंट पीरियड। तो इस 9 मंथ में बेबी की डेवलपमेंट होती है, जहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारा इवेंट टोटल कितना टाइम लेता है? 9 मंथ्स का लेता है। ठीक है बेटा, यानी अगर आप देखें तो कितना टाइम अगर डे में कन्वर्ट करें तो 270 से 280 दिन तक लेते हैं बेबी डेवलप करने के लिए, फीमेल्स के यूट्रस में या फीमेल की उम्र में। ठीक है, इसमें प्लस माइनस 15 डेज का होता है। ठीक है, वो आपके लेवल का नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, और वी कैन से दैट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। Yes, all dear students, you can see here the fertilized egg, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक एग है जिसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, स्पर्म वहाँ पे उसको पेनिट्रेट कर रहा है।
इसके बाद जाइगोट बनेगा और उसका डिवीज़न होगा, क्लीवेज होगा जिसे हम कहते हैं, 2 सेल स्टेज बनेगी, फिर 4 सेल, फिर उसके बाद 8, 16, 32 एंड सो ऑन। एंड यू कैन सी हियर मोरूला जो आपको दिख रहा है एक 16 सेल स्टेज में यहाँ पे दिखाया गया है। इस यू कैन सी हियर फुल इवेंट्स, जहाँ पे आपको पूरा एक प्रोसेस दिखाया गया है। ओवरी ने एग को रिलीज़ किया, ओवुलेशन प्रोसेस से फलोपियन ट्यूब में पहुँचा, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, फिर जाइगोट का क्लीवेज यानी डिवीज़न होते हुए वो जाके फिर अटैच हो गया किससे, एंडोमेट्रियल लाइनिंग से। ओके बेटा, तो हम यहाँ से देखेंगे हाउ young ones changes into adult। ठीक है, यानी जो यंग वंस होते हैं ये एडल्ट में कैसे चेंज होते हैं, तो दो तरीके हैं बेटा, यहीं से हम कंपेयर कर लेंगे, तो कंपैरिजन भी हमको पता चल जाएगा और कॉन्सेप्ट भी जान जाएंगे। तो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डेवलपमेंट, second one is here indirect development direct development and indirect development। ओके बेटा, अब यहां से देखेंगे दिस इज द टाइप ऑफ डेवलपमेंट in which embryo directly developed into mature individual without any intermediate stage, or we can write larval stage। यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट में बेटा क्या होता है कि जो जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड करेगा, एम्ब्रियोज बनाएगा और एम्ब्रियो सीधा किस में डेवलप हो जाएगा, सीधा वो न्यू इंडिविजुअल या ऑफ स्प्रिंग में डेवलप हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में, हियर इंडिविजुअल possesses intermediate larval stage before developing into complete organism, यानी हम सिंपल वर्ड्स में कहें, हम सब कुछ भूल जाएं, हमको केवल एक चीज याद रखनी है बेटा कि डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज होती है। तो अगर आप सारे डेफिनेशन भूल जाते हैं, आपका सारा कंटेंट डिलीट हो जाता है, कोई बात नहीं, केवल इतना याद रखिए इन डायरेक्ट डेवलपमेंट देयर इज नो लार्वल स्टेज एंड इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देयर इज व्हाट लार्वल स्टेज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉइंट नंबर 1। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट नंबर 2, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट। तो यहाँ पे लार्वा बना नहीं है तो मेटामॉर्फोसिस होगी नहीं, सो हियर मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट एंड हियर मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट। और इसी की वजह से क्या होता है, जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस से किस में चेंज हो जाता है, एडल्ट में चेंज हो जाता है। दिस मैकेनिज्म इज सीन इन द केस ऑफ बर्ड्स, ठीक है, यू विल सी इन द केस ऑफ मैमल्स
यानी हम लोगों में क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एंड दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट यू विल सी इन द केस ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस का मतलब ऐसे जो कहाँ, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में और एक्वाटिक हैबिटेट में दोनों में रहते हैं। कहेंगे सर आप एनिमल का ही नाम बता दीजिए, चलो लिख लो, फ्रॉग, बटरफ्लाई, फ्रॉग, बटरफ्लाई। यहाँ सभी में क्या होता है बेटा, लार्वल स्टेज होती है। यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हम लोगों में क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ यंग वंस इनटू एडल्ट। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे कुछ टॉपिक्स और देखते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं। अभी बेटा हमने एक टर्म यूज़ किया था मेटामॉर्फोसिस, तो देख लेते हैं क्या होता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, लेट्स सी इट। एक्चुअली इन द केस ऑफ कहाँ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, larva undergo drastic changes, larva undergo drastic changes to become adult। ठीक है, यानी होता क्या है कि सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल देखें मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, तो मान के चलते ये फ्रॉग था, फ्रॉग क्या करेगा, एग रिलीज करेगा, एग से क्या बनेगा, लार्वा, और उस लार्वा को फ्रॉग के हम क्या कहते हैं, टैडपोल। एंड नाउ दिस विल चेंजेस इनटू एडल्ट। ठीक है, तो ये प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो एग होता है वो रिलीज किया गया किसी फ्रॉग के द्वारा या बटरफ्लाइज के द्वारा, वो सबसे पहले लार्वल स्टेज में जाएगा। ठीक है, लार्वा में चेंज होगा, लार्वा के बाद वो एडल्ट बनाएगा। यानी एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्वा कुछ सर्टेन चेंजेस के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। इट मीन्स दैट कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो यानी कन्वर्जन होता है लार्वा के एडल्ट में, किससे, मेटामॉर्फोसिस से। ओके ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट। इन द लास्ट लेट्स डिस्कस अ नोट। आपको यहाँ की बढ़िया सा नोट दे के जाते हैं। नोट क्या होता है, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो, द stage of the embryo, the stage of the embryo when all the body parts of developing baby is visible. The stage of the embryo when all the body parts of the developing baby is visible called fetus। मैंने कल भी आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, एक ऐसी स्टेज जब ये सभी ऑर्गन सिस्टम क्लियरली विजिबल होने लगते हैं। हेड आप देख सकते हैं, लिम्स जिसमें आपके हैंड और लेग्स आते हैं, ठीक है, नोज, आईज, ईयर, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जाइगोट इज सिंगल सेल, एम्ब्रियोज हैज मोर देन वन सेल, एंड फीटस इज द स्टेज व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स आर क्लियरली आइडेंटिफिकेबल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेटा क्या जो हमारे रिमेनिंग पॉइंट्स हैं। इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक्स प्लेस देन व्हाट चेंजेस विल टेक्स प्लेस इन फीमेल्स बॉडी, एंड वी विल आल्सो डिस्कस सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। So a very thanks to all of you for watching the video. I hope that after watching the video there will not be any doubt, and if you have any doubt, any queries, you can leave in comment box.
So that is all about for today. Like always, keep smiling. Have a nice day. Bye bye till next schedule. Jai Hind.